Welcome students, let us start new chapters. Second, polynomial. इस चैप्टर को रीडिंग करने से पहले हमें 9th क्लास का सेकंड चैप्टर अगर दोबारा से रीडिंग कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी मैं कुछ पॉइंट्स आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल। व्हाट इज पोलिनोमियल? An algebraic expression of the form p of x a naught plus a1 x1 plus a2 x2 and so on plus an xn where a not equal to 0, where a not equal to 0 and this one not equal to 0, where an not equal to 0 is called a polynomial in variable x of degree n, where a naught, a1 and so on are real numbers. It means these numbers, these are coefficients of any variable. These coefficients, these numbers takes any values, rational, irrational, integer, whole number, natural number. What each power of x is a non-negative integer. वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होनी चाहिए. इट मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो, और नॉट 3/2, नॉट -5, मोन्स नॉट √2, ओनली नॉन नेगेटिव. इट मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. एग्जाम्पल, x की 5 plus x की 4 plus 3x square plus 5x. It is polynomial. 3x square plus 5x plus 3. It is also polynomial. √3 into x plus 5 is also polynomial. But x की power 1/2 या √x plus 1 not polynomial because root means half. 1/2 not a non-negative integer. 1/2 नेगेटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था 1/2, जो कि 1/2 एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है. सेकंड एग्जांपल में -5 नॉट नेगेटिव होना चाहिए था. ये नेगेटिव नंबर है, इंटीजर तो है किंतु नेगेटिव नंबर है, सो इट इज आल्सो नॉट ए पोलिनोमियल. दीज कॉल्ड constant means fixed value. It cannot change according to question, according to situation. But x, these are variable. It means changeable according to situation, according to question. So it is a proper definition of polynomial. Students, now next part, degree. Highest power of x in a polynomial. Highest power of x in a polynomial is called a degree. For example, x की 5, x की 4 plus x की 3, 2x plus 5. Here 5x, x की 5 is highest power, so degree of this polynomial 5. Similarly, if highest power 4, then degree of that polynomial is 4. Now linear polynomial, 1 degree polynomial is called linear polynomial. For example, 5x plus 3, similarly 7x plus 2. Standard form of linear polynomial ax plus b. Standard form of linear polynomial ax plus b. After then, quadratic polynomial 2 degree. Any polynomial who have 2 degree, it means highest power of x is 2, then it is quadratic
फॉर एग्जाम्पल x की 2 प्लस 5x प्लस 3, सिमिलरली x की 2 5x की 2 प्लस 3x प्लस 5, बट स्टैंडर्ड फॉर्म जो सेकेंड डिग्री यानी क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद आता है क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक यानी 3 डिग्री पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल x की क्यूब 5x प्लस 3x, 5x की 2 प्लस 3x प्लस c एंड सो ऑन। इट्स ए स्टैंडर्ड फॉर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। नाउ जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, मेन पॉइंट है जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। व्हाट इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल? x की ऐसी वैल्यूज जिसको पोलिनोमियल में रखने पर, x के स्थान पे रखने पर वो इक्वल टू जीरो आ जाती है, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। x की ऐसी वैल्यूज जिसको पोलिनोमियल में x के प्लेस पर रखने पर वो इक्वल टू जीरो हो जाता है, तो आपकी वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहलाता है। यानी वैल्यू ऑफ x at which p of x becomes to zero, then that is called zero of a polynomial। जैसा कि हम 9th क्लास में डायरेक्टली करते थे, जैसे ax प्लस b इक्वल टू जीरो, x इक्वल माइनस b अपॉन a, दैट इज जीरो ऑफ द polynomial। How many zeros of any polynomial? If linear, maximum 1 0, quadratic maximum 2, 3, cubic maximum 3। maximum 3 means और 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, किंतु 3 से ज्यादा उसकी वैल्यूज नहीं हो सकती। इसी प्रकार n डिग्री पोलिनोमियल की मैक्सिमम n जीरोज हो सकती है, n वैल्यूज हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नाउ कम टू मेन टॉपिक ऑफ geometric meaning of the zero of a polynomial। Students, let us take some examples. Geometrical meaning of zeros of a polynomial। You know linear polynomial ax plus b या 5x plus 3, it always represent a straight line in graph। ग्राफ में जो फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियल होती है हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को डिपेंड करती है। इट हैज 1 डिग्री, सो इट हैज 1 0। इट मीन्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्स एट 1 पॉइंट, देखो यहां पर मैंने एक रफली ग्राफ बनाया, तो ये 1 पे इंटरसेक्ट करता है, कि यहां पर पॉइंट क्या हो गए 1 0। इट मीन्स जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू 1। यानी मैं आपको ये बताना चाहता हूं भी एज पोलिनोमियल में जब हम कोई भी पोलिनोमियल होती है वो p ऑफ x होती है, इसको अगर हम y के इक्वल रखते हैं, यानी x की कोई वैल्यूज पुट करेंगे उस पोलिनोमियल में, तो इक्वल टू y आ जाएगा। यानी x की ऐसी वैल्यूज जब पुट करने पर y इक्वल टू 0 आ जाता है, तो वो उसकी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल होती है। इन ग्राफ केस में एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा वहां पर y इक्वल टू 0 होगा ही होगा। एक्स एक्सिस पे कोई भी ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पे करे या 2 पॉइंट पे करे या किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे या ओरिजिन पे करे, वो उसकी जीरोज होगी। हाँ, लीनियर के केस में सिर्फ 1 पॉइंट होंगे। यहां पर देखो y इक्वल टू 0, इसका मतलब है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल x की वो वैल्यूज होगी जिसमें y इक्वल टू 0 होगा, अथवा हम कह सकते हैं ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा दैट इज जीरो ऑफ द पोलिनोमियल।
जैसे क्वाड्रेटिक में हर आर्क में 2 से ही काटेगा, 2 पर ही इंटरसेक्ट करेगा। इसके बारे में डिटेल में आप +1 में पढ़ोगे। इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला। ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है, राइट हैंड वर्ड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड भी हो सकता है, किंतु अभी फिलहाल इसको जरूरत नहीं है। बस आपने यही देखना क्वाड्रेटिक में ये 2 को इंटरसेक्ट करता है। इसमें भी आपको इस एग्जांपल में भी 2 पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज हेयर 2, हेयर 1, हेयर 2, ये हेयर नंबर ऑफ जीरोज nil because it cannot intersect x axis at any point. For example, हम कह सकते हैं अगर ये x स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ हो, x स्क्वायर प्लस 4 का ग्राफ हो, x की आप कोई भी वैल्यूज बता नहीं सकते जिसके लिए इक्वल टू 0 हो जाए, जिसके लिए इक्वल टू ये 0 हो जाए। x की कोई वैल्यूज ऐसी पॉसिबल नहीं है जिसके लिए ये इक्वल टू 0। इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम 2 जीरो जा सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और नील भी हो सकती है। यहाँ पर ये ओरिजिन को ही इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये ओरिजिन को इंटरसेक्ट करता है, यानी इसका इस केस में y इक्वल टू आप कह सकते हो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन सकता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 लोगे, y की वैल्यू 0 लोगे। इस केस में आपका 1 0 हो जाए। इस प्रकार हम 2.1 एक्सरसाइज को बड़े इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। सिर्फ हमने ये चेक करना है जो आपको ग्राफ दिया हुआ है, जो आपको ग्राफ दिया हुआ है वो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा वो उसके जीरोज होंगे। 2 बार इंटरसेक्ट करता है उसके 2 जीरोज। हम बता भी सकते हैं, जहां पर हमने जो एग्जांपल ये लिया हुआ है, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट 2 0 है और इस साइड -2 0 है, तो हम कह सकते हैं इट हैज 2 जीरोज, 1 इज 2 0, सेकेंड इज -2 0। यहां पर 0 0 यानी ओरिजिन को इंटरसेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स प्लीज रिवाइज अगेन एंड अगेन, वॉच this video again and again and complete 2.1 exercise. Thank you. Okay, all of you.